اپنے ہم خدمت بھائیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا، جنہوں نے پچھلے 2 دن خوب خدا کی حضوری میں، اس کی خدمت میں، کنونشن میں جو وہ گزارے، اور کئی چہرے ایسے جو وہاں پہ کلیسیا کے، کئی چہرے ایسے تھے جو نظر نہیں آئے، لیکن شاید آج وہ چرچ اس لیے نہیں آئے کہ وہ کہتے ہیں 2 دن کنونشن تھی جی اس لیے ہم چرچ نہیں آ پائے. لیکن اپنی ساری ٹیم کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں. مینجمنٹ اور سیکیورٹی اور بچیاں جو پروٹوکول میں تھی، بہنیں جو اشرز وغیرہ، سبھی جب وہ 2 دن خوب کام کرنے کے باوجود بھی آج صبح سبھی خدا کے گھر میں موجود ہیں. اب سب کے لیے خداوند کا شکر ہو. جو نہیں آ پائے خداوند ان کے بھی ساتھ ہو اور توفیق دے مجھے، آپ کو، ہم سب کو خدا توفیق دے کہ ہم خدا کے گھر میں اور اس کی خدمت کے کام میں زور مارنا سیکھیں. میں ابھی جب یہاں پہ پرستش ہو رہی تھی، میں دعا کر رہا تھا اور میں خدا کا شکر کر رہا تھا. یہ میرے لیے برکت کی بات ہے، یہ میرے لیے بلیسنگ ہے. اس کو میں بلیسنگ لوں گا کہ کل سے آج تک ابھی 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے اور خدا مجھے یہ تیسرا موقع دے رہا ہے اپنے کلام کی خدمت کرنے کا، اور اس کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں خداوند اسی طرح جب وہ استعمال کرتا چلا جائے، اور آپ سب کی دعائیں جب وہ میرے ساتھ رہیں، اور آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے جب وہ اور گھنٹوں گھنٹے خداوند کی خدمت کر سکوں. اور میں اس بات کے لیے خداوند کی تعریف اور شکر گزاری کرتا ہوں. آج صبح میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیے، ایک مرتبہ پھر آموس نبی کے پاس ہم چلیں گے. اور آموس نبی کی کتاب میں سے میں ماضی قریب میں ہی 2 میسیجز آپ کے درمیان شیئر کر چکا ہوں، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے بیان کرتا جاؤں. 5ویں باب میں سے خدا کا نوحہ، اس پہ جب ایک میسیج جب وہ ہم نے دیکھا تھا، اور پھر جب وہ بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں آؤ اور کثرت سے گناہ کرو. آج اس کتاب میں سے یہ تیسرا میسیج ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو. آموس نبی کی کتاب اور اس کا 7واں باب. آموس 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 10 سے خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: تب بیتیل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یربعام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یربعام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا. اور امسیہ نے آموس سے کہا: اے غیب گو، تو یہودا کے ملک کو
भाग जा, वहीं खा पी और नबूवत कर। पर बैतएल में फिर कभी नबूवत ना करना, क्योंकि ये बादशाह का मकदिस और शाही महल है। आमीन। आपको याद है आमूस का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया पिछले 2 माह के अंदर, 2.5 माह में ये तीसरा मैसेज है जो हम देख रहे हैं। बोझ उठाने वाला, आमूस बोझ उठाने वाला। और आमूस का ताल्लुक जो है ये जनूबी सल्तनत शाह यहूदा यरूशलेम के इलाके तको से था। और तको का इलाका जो है ये बैतलहम से तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर के दूरी पर है। सो गोया आमूस नबी 2 कबीलों की सल्तनत यानी जनूबी सल्तनत या बनी यहूदा से ताल्लुक रखता था। और पेशे के एतबार से यह शख्स एक चरवाहा था। और 2 तरह के चरवाहे जो है उस दौर में पाए जाते थे। एक वो जो भेड़ों की परवरिश उनकी ऊन और उनके गोश्त के लिए करते थे, नौकेदेम वो लोग कहलाते थे। और एक किस चरवाहों की वो थी जो भेड़ों की अफजाइश नस्ल और उनसे दूध हासिल करने के लिए उनकी जब वो परवरिश करते थे। सो तारीख ये बताती है, मुहक्किकीन इस तहकीक को बयान करते हैं कि आमूस का ताल्लुक नौकेदीन से था। ऐसे चरवाहे जो छोटे कद की भेड़ों को पालते और उनसे वाफर मिकदार में ऊन हासिल करते थे। अगर कभी आपको इत्तेफाक हो तो आप नेट पे यूट्यूब पे जाइए और वहां पे देखिए कि आज भी जो है वो ऐसी खास नस्ल जो है वो भेड़ें पाली जाती हैं। और वो देखने में जो है वो इस कदर बड़े साइज की लगती हैं, लेकिन उनके ऊपर से जब ऊन उतर जाती है तो जो साइज पहले नजर आता है वो उसके हाफ से भी कम जो है वो होती। और उनकी आंखें ऊन के अंदर छुपी होती, उनके नाक के ऊपर भी ऊन जो है वो चढ़ी होती है। और वो उसको मशीन से काटते हैं और वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक बड़ी बिल्ली की मानिद जसामत की वो भेड़ होती है, लेकिन जब उसके ऊपर ऊन होती है तो वो एक बड़े जानवर की तरह नजर आती। सो गोया ये एक खास नस्ल की भेड़ें जो कद में छोटी मगर ऊन ज्यादा जो है वो इनसे प्रोड्यूस की जाती थी। सो इसका ताल्लुक, आमूस का ताल्लुक तको के इलाका से और पेशे के एतबार से ये चरवाहा था। खुदा ने इसको चुना और खुदा ने इसको बनी इस्राइल शुमाली सल्तनत यानी 10 कबीलों की सल्तनत के खिलाफ अदालत के लिए इस्तेमाल किया। और अगर आप इब्तदाई आयत पढ़े, इब्तदाई बाब की इब्तदाई आयत, पहले बाब की पहली आयत, तो आपको आमूस का दौरे नबूवत नजर आ जाए। 3 चीजें, आमूस किस इलाका से ताल्लुक रखता था, आमूस पेशा क्या था, और आमूस किन
बादशाहों के दौर में था। और अगर आप उन बादशाहों को जिन मलूक के दौर में आमूस का दौर नबूवत है, और उन्हीं बादशाहों को अगर आप देखें तो उन्हीं के दौर में यसाया नबी का दौरे नबूवत भी आपको मिलेगा। सो इन दोनों अंबिया अकबर में से यसाया और अंबिया असगर में से आमूस, इन दोनों का दौरे नबूवत जो है वो करीब करीब आपको नजर आएगा। और तारीख के शवाहद ये बयान करते हैं कि आमूस नबी का दौरे नबूवत या किताब तकरीबन 760 कबल अज मसीह के अंदर जो है वो लिखी गई या दौरे नबूवत नजर आता है। और जब आप 7th चैप्टर के अंदर आइए तो 7वें बाब की 10वीं आयत से हमने ये हवाला पढ़ा है, लेकिन पहली 9 आयत के अंदर आपको 3 रायतें नजर आएंगी जो खुदा ने आमूस को दिखाई। और अगर पहली आयत से निगाह कीजिए तो जो पहली रोया है उसमें खुदा ने आमूस को जो है वो एक खेत दिखाया है, और वहां पे फसल जो है वो पकी हुई है, मगर और कटाई का वक्त है, मगर ऐन कटाई के वक्त जो है टिड्डियां वहां पर हमला कर देती, और वो देखता कि कुछ भी वहां नहीं छूटा, गोया इस्राएल के अंदर कहत की हालत। इस्राएल के अंदर जो है रोटी पानी खत्म हो जाने की हालत है। और आमूस इस हालत को देख के क्या कहता है? 7वां बाब दूसरी आयत लिखा है, और जब वो जमीन की घास को बिल्कुल खा चुकी तो मैंने अर्ज की कि एक खुदावंद खुदा मेहरबानी से मुआफ फरमा, याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके क्योंकि वो छोटा है। ये अदालत जजमेंट इस रोया के अंदर नजर आती है, और इस जजमेंट के अंदर जो अदालत जो की गई है किस सबब से कि बनी इस्राएल की रोटी छीन ली गई, खाने पीने के असबाब छीन लिए गए, खुश्क साली और कहत से खुदा जजमेंट जो है वो कर रहा है। खाना मौजूद नहीं है, भूख नंग फैल रहा है, कहत की हालत है। अगर कभी आपको मौका मिले तो इस हालत को देखने के लिए आप जो है वो नेट पे जाके इथियोपिया और सूडान और ऐसे ममालिक जहां पे कहत है उनको देखिए, बल्कि और भी करीब आ जाए तो मुल्क पाकिस्तान का इथर का इलाका जो है वहां पे देखिए माजी करीब के अंदर ही जो है किस कदर खबरें आती थी कि उस इलाका में जब वो गजाई किल्लत है, खाने को कुछ नहीं, बच्चे मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, और जो है वो पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए अजनास वहां पर नहीं है, और लोग मुश्किल की हालत में, कसम पुरसी की हालत में है, वहां से इलाके छोड़ नहीं सकते, उनकी वहां पे जायदादें, मगर वहां पे रह भी नहीं सकते। गोया कहत की हालत में इंसान के लिए जीना जो है, जिंदगी जो है दो भर जो है वो हो जाती। किस कदर मुश्किल हालात, किस कदर तंग दस्ती, ये जजमेंट है, ये पहली रोया है। और खुदावंद खुदा ये फरमाता है, रोया दिखाकर सिंबॉलिक मेथड ऑफ प्रोफेसी, अलामती तरीका नबूवत इस्तेमाल हो रहा है, और खुदा बयान कर रहा है, मैं बनी इस्राएल
मैं 10 कबीलों, मैं शुमाली सल्तनत की अदालत करूंगा, और अदालत क्या करूंगा, मैं उनकी रोटी उनसे छीन लूंगा, उन्हें मुश्किल के अंदर ले आऊंगा। और वहां पर आमोस क्या कहता है, खुदावन रहम कर, खुदावन मुआफ कर दे, क्योंकि ये छोटे हैं, ये कमजोर हैं, ये नातवा हैं, ये तेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ये तेरी अदालत की ताब नहीं ला सकते। तो खुदा ने क्या कहा, गोया जहां पर आमोस से नबूवत कर रहा है, खुदा का कलाम भी पहुंचा रहा है, वहीं पर आमोस शिफात भी कर रहा है, इंटरसेशन भी कर रहा है। और खुदा उसे क्या जवाब देता है, 30वीं आयत में लिखा है, खुदावन इससे बाज आया और उसने फरमाया, क्या खुदा ने फरमाया, यूं ना होगा। आमोस, तूने शफायत की है, तूने इंटरसेशन किया है, तूने इन लोगों के लिए रहम को मांगा है, लिहाजा मैं वो खुदा हूं जो कहर करने में धीमा हूं, मेरी शफकत अबदी है, मेरा रहम अबदी है, लिहाजा क्या है, मैं इनकी अदालत नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा, मैंने तेरी दुआ को सुन लिया। ये पहली रोया है। दूसरी रोया लिखा है आग की रोया, और वहां पे क्या लिखा है, खुदा ने क्या रोया दिखाई कि खुदा ने आसमान से आग को भेजा है, और वो आग जो है वो समंदरों के समुंदर जब वो निगल गई, बहरे अमीक, गहरा समुंदर, अमीक का मतलब गहरा, वो गहरे समुंदर को भी, उसके पानी को उसने खुश्क कर दिया। ना सिर्फ रोटी की भूख बल्कि पानी की प्यास भी। शायद रोटी के बगैर तो इंसान चंद दिन गुजार ले, मगर पानी के बगैर कैसे वक्त जो है वो गुजारेगा, कैसे जिंदगी जो है वो मुमकिन है। और लिखा है कि करीब था कि वो आग जमीन को भी खा जाए, लेकिन फिर आमोस बीच में आके खड़ा हुआ, और 5वीं आयत में फिर वो क्या कह रहा है, तब मैंने अर्ज की कि ए खुदावंद खुदा मेहरबानी से बाजा। और वही दुआ और वही अल्फाज जो पहली रोया के वक्त आमोस ने बोले थे, वही अल्फाज फिर से आमोस बोलता है, वही दुआ फिर से आमोस कर रहा है। और फिर खुदा क्या जवाब दे रहा है, लिखा है खुदावंद इससे बाज आया, और खुदावंद खुदा ने फरमाया यूं भी ना होगा। ये दूसरी जब वो अदालत, दूसरी रोया, पहली रोया में खुदा ने जाहिर किया मैं कहत से अदालत करूंगा, दूसरी रोया में खुदा ने जाहिर किया मैं सूखे से अदालत करूंगा, और तीसरी रोया में खुदा क्या रोया दिखाता है, खुदा कैसे अदालत करेगा। लिखा है खुदा ने एक साहूल, एक पैमाइश, जो बुलंदी से नीचे ये औजार जब वो लटकाया जाता और देखा जाता है क्या ये हमवार है, क्या ये दुरुस्त है, क्या इस दीवार के अंदर जो है वो आगे पीछे बेतरतीबी तो नहीं है, और अगर बेतरतीबी है तो उसको ठोक के सीधा किया जाए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। गोया लिखा है खुदा ने उसे एक साहूल दिया जो खुदा एक दीवार पर लेकर खड़ा था, और उसने फरमाया आमोस तू क्या देखता है, उसने खुदावन साहूल देखता हो। खुदा ने कहा मैं यही साहूल अपनी कौम पर लटकाऊंगा, और जितनी भी बेतरतीबी है उसकी सजा उन्हें दूंगा। उनकी रवशें सीधी नहीं है, उनके रास्ते दुरुस्त नहीं है, वो बुत प्रस्ती भी करते हैं, ऊंचे मुकामों पर भी जाते हैं, वो बुतों के आगे भी झुकते हैं, वो बाज नहीं आते। मैं उनकी जो है वो चेक करूंगा, मैं उनको देखूंगा,
اور جہاں پر وہ غلط ہوں گے, بے ترتیب ہوں گے, لکھے میں وہاں پر جو ہے وہ ان کی تربیت کروں گا, تنبیہ کروں گا اور عدالت جو ہے وہ کروں گا. اور اگر آپ 6 آیت دیکھیے, 9ویں آیت, اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہوں گے. اور یہاں پہ دیکھیے تیسری رویا ہے, اور یہاں پر آموس انٹرسیشن نہیں کر رہا. پہلی جو 2 رویا میں عدالت تھی, وہاں پہ اس نے انٹرسیڈ کی ہے, وہاں پہ اس نے شفاعت کی ہے, اور خدا نے اس کی شفاعت کا جواب بھی دیا. مگر جو تیسری رویا ہے, وہاں پر نہ وہ شفاعت کر رہا ہے اور نہ ہی خدا اس ججمنٹ سے باز آ رہا ہے. خدا نے کہا میں ضرور کروں گا. کیوں؟ آپ کو اس کے اندر کوئی سبب نظر آتا ہے؟ خدا نے کہا پہلی عدالت کے اندر میں بھوک سے, قحط سے ان کی عدالت کروں گا. دوسری میں کہا میں خشک سالی سے ان کی عدالت کروں گا. لیکن تیسری ججمنٹ کے اندر ریزن ہے کیوں عدالت کروں گا. اس لیے عدالت کروں گا کیونکہ انہوں نے میرے خلاف اونچے مذبے جو ہے وہ بنائے. بہن جی ذرا اس کو اٹھائیے پلیز, یا آپ آگے آ جائیے یا اپنی چیئر چینج کیجئے. آپ جو بھی ہیں, آپ یہاں پہ سونے کے لیے نہیں آئے. آپ کی وجہ سے میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں. آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے تو آپ گھر میں سویا کریں, مت چرچ آیا کریں. یہ جو دیواریں ہیں آپ کے ٹیک لگانے کے لیے نہیں ہیں, یہ آپ کے ریسٹ کے لیے نہیں بنائی گئی دیواریں. مہربانی سے خدا کے گھر کو خدا کا گھر سمجھیے. یہ اونچے مقام خدا کے مقابل, خدا کے مقابلہ میں خدا کے ہم پلہ معبودوں کو لے آتے ہیں. انہوں نے میرے سامنے اور معبود لا کر کھڑے کر دیے ہیں. لہذا اب میں ان کی پیمائش کروں گا, ان کو میں سیدھا کروں گا, ان کو میں درست کروں گا, میں ان سے باز نہیں آؤں گا. اور آموس نے کیا کیا؟ اور یہ 3 روایتیں, 3 عدالتیں جو ہے وہ کس کے لیے دکھائی جا رہی تھی جی؟ شمالی سلطنت کے لیے, 10 قبیلوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے یہ عدالتیں جو ہے وہ دکھائی جا رہی. اور اس نے, آموس نے کیا کیا؟ آموس وہی میسج لے کر, آموس خدا کا وہی کلام اور وہی روایتیں لے کر جو ہے وہ شمالی سلطنت میں بیت ایل میں پہنچا. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے بیت ایل وہ علاقہ تھا, وہ مقام تھا جہاں پر یربام بادشاہ نے مذبح, سونے کا مذبح بنوایا تھا. اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر یربام نے جو ہے وہ اپنے کاہن, خدا کے کاہن نہیں, اپنے پیڑ کاہن جو ہے وہ مقرر کیے تھے. اور ان کاہنوں کی رسد, سیلری, تنخواہ, ان کی جو وہ افزانہ جو ہے وہ خدا کے گھر کی کوٹھڑی میں سے, دائیکیوں میں سے نہیں, بلکہ وہ بادشاہ کے محل سے جو ہے وہ آتا. گویا وہ بادشاہ کے پیڑ پریسٹ تھے. اور لکھا جب آموس وہاں پر بیت ایل میں جو اسرائیل کے 10 قبیلوں کی آماج کا تھی, جہاں پہ بنی اسرائیل شمالی سلطنت کے لیے سونے کا مذبح بنوایا گیا تھا, جب وہ وہاں پر پہنچا اور میسج اس نے ڈیلیور کیا, بنی اسرائیلیوں سنو, یہ خدا کا کلام ہے, خدا تمہیں قحط سے عدالت کرنا چاہتا تھا, میں نے شفاعت کی اور خدا نے جواب دیا ایسا نہیں ہوگا. خدا خشک سالی سے تمہاری عدالت کرنا چاہتا تھا اور میں نے دعا کی اور خدا نے کہا ایسا بھی نہ ہوگا. لیکن اب چونکہ تم نے خدا کے مقابل
अपने लिए देवी देवता और दूसरे खुदा ठहरा लिए हैं, लिहाजा अब खुदा तुम्हारे ऊंचे मुकामों को गिरा देगा, खुदा तुम्हारी अदालत करेगा, खुदा तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हारे मजहबे गिरा देगा और कोई नहीं जो उनको बचाने वाला। और वहां पे जब आमोस बैतएल में जाकर ये कलाम कर रहा और ये मैसेज दे रहा था, तो वहां पे बादशाह का लगाया हुआ, बादशाह का मखसूस किया हुआ एक काहिन जिसका नाम अमसिया था, वो भागा भागा आया और फौरन से क्या उससे कहने लगा। लिखा है 10वीं आयत जो हमने हवाला पढ़ा, तब बैतएल के काहिन, यरूशलेम का काहिन नहीं, याद रखिए ये काहिन बैतएल का है, वो बैतएल जहां यरबाम ने मजबा बनवाया है, खुदा ने नहीं बनवाया। वो बैतएल जहां सोने का मजबा बना है, पीतल का मजबा नहीं बना। वो बैतएल जो खुदावंद की हैकल के अंदर नहीं है, ये मजबा बल्कि खुदा की हैकल से बाहर है। और ये वो काहिन है जिसको खुदा ने मखसूस नहीं किया, इसको यरबाम अव्वल ने मखसूस जो है वो किया है। सो लिखा है वो काहिन, बैतएल के काहिन इमसिया ने शाह इस्राएल यरबाम को कहला भेजा। फौरन बादशाह के महल से लेकर खाता था, मुलाजम था बादशाह का, खादम नहीं था, मुलाजम था। लिहाजा जब भी मुश्किल आती, जब भी परेशानी आती, आप बाइबल उठा के देखिए काहिन क्या करते, वो खुदा के घर में जाते। अगर कोई दुश्मन उन पर चढ़ आया है तो भी वो खुदा के घर में जाते, और अगर खुदा के लोगों ने कहीं चढ़ाई करनी है तो भी खुदा के घर में जाते, और 2 पत्थर ओरीम और तमीम वो उनको लेते और खुदा की हजूरी में उसकी मर्जी को पूछते। ये खुदा के काहिनों का काम था। वो काहिन जो खुदा की मर्जी से कायम किए गए, वो काहिन जो खुदा के इरादा से ममसू थे, मखसूस किए गए थे, वो बादशाहों के पास नहीं जाते थे, वो जंगजुओं और सिपा सालारों के पास नहीं जाते थे। वो अपनी मुश्किल हालात के अंदर खुदा के घर में आते और खुदा से उसकी मर्सी को, उसके रहम को मांगते, और खुदा उन्हें जवाब देता था। मगर ये खुदा का बंदा है ही नहीं, ये खुदा का काहिन है ही नहीं, ये तो खुदा के घर में कहानतकारी नहीं रहा, ये तो बादशाह का पेड़ है। लिहाजा ये क्या करता है, फौरन बादशाह को खबर देता है, देख यहूदा के इलाका से एक नबी आमोस जो अपना नाम बताता है वो आया है, और आके क्या लिखा है, इस्राएल में फितना बर्पा कर, बगावत कर रहे, फितना साजी कर रहे। और फितना का क्या मतलब है, ऊट पटांग बातें करना, मुखालफ बातें करना। जो भी आपकी पॉलिसी है, जो भी आपके तरीकाकार है, उसके खिलाफ बात करना, कोई नया शोशा, नया मसला, नया इश्यू खड़ा कर देना जो गैर मंतकी हो, जो अकल के तकाजों पर, अकली तकाजों पर पूरा ना उतरे, जो एक सिस्टम के खिलाफ बात चले, दैट इज फितना। उसने क्या कहा, उसने ये नहीं कहा ये झूठ बोलता है, उसने क्या कहा, ये फितना खड़ा कर रहा है। गोया जो सिस्टम बादशाह तूने बनाया है, उस निजाम के खिलाफ एक और इशू, एक और निजाम जो है वो मुतारिफ करवाने की कोशिश कर। और एमसिया काहिन जो खुदा का काहिन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखिए, लिखा है वो उसने आमोस से क्या कहा, 11वीं आयत, क्योंकि आमोस यूं कहता है कि यरबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। और इमसिया ने आमोस से कहा, ए गैबगो, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, वापस अपने मुल्क में चला। तू यहूदा से है, यहूदा में चला जा,
वहीं खा पी और क्या लिखा जी, वही नबूवत कर। जो कुछ वो खुद कर रहे वही सलाह उसको दे रहे। मैं भी खाता पीता हूं, बादशाह के महल से रसद आती है, खूब अच्छे दिन गुजरे, जिंदगी जो है वो मजे में गुजर रही है, और जो बादशाह कहता है हम वैसी नबूवत कर देते हैं, बात खत्म। बादशाह भी खुश, अवाम भी खुश, हम भी खुश, काम ठीक ठाक चल रहा है। तू भी जा और जाके यहूदा में अपने घर में चुप करके बैठा रहे। तुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है? लोगों के खिलाफ बातें करता है, लोगों से सुनता है बातें, लोगों की जली कटी सुनता है। कोई तेरे साथ खुश होता है, कोई तेरे साथ नाराज होता है, कोई तुझे अच्छा समझता है, कोई तुझे बुरा समझता है। जा जाके अपने घर आराम से बैठ, रोटी पानी खा पी और खूब मजे की जिंदगी गुजार, जयश कर। और आगे क्या कहता है, फिर कभी बैतेल में नबूवत, यही लिखा जी, यहूदा के मुल्क को भाग जा, वहीं खा पी और नबूवत कर, पर बैतेल में फिर कभी नबूवत क्यों? लिखा है ये बादशाह का मकदस। ये कितनी बड़ी बात है जो नासमझी में वो कर गया। काहिन जो है वो तो खुदा के मकदस के होते हैं, कभी इंसानों के भी मकदस हुए, कभी इंसानों के मकदस के भी काहिन हुए। मकदस तो खुदा का होता है जहां खुदा बसेरा करता है। ये बादशाह का मकदस है। यरूशलेम में तुम्हारे पास इतनी कुपत्थरों की बनी हुई टेंपल है, जा वहीं पे जाके नबूवत कर। हमारे पास हमारे बादशाह ने सोने का मज़बा हमें बनवा के दिया, हमारे पास सोने का मकदस है। बादशाह ने बड़ी रसद फराहम की है और हमने जबरदस्त जो है वो यहाँ पे मकदस बनाया है, मज़बा बनाया। तू जा और अपने पत्थरों की हैकल में जाकर बसेरा। यहां पे मत आना, बैतेल में मत आना, और यहां पर आकर नबूवत ना कर। आपको कुछ याद आता है? कुछ लोग और भी थे जिनके साथ इसी तरह की बात की गई। उनसे कहा गया था तुम सब कुछ करो मगर मसीह का नाम लेकर मनादी। किसको कहा गया था? पतरस और यूहन्ना को। अमाल की किताब। सब कुछ करो मगर मसीह का नाम लेकर मनादी ना करना। क्यों? क्योंकि हमारे मामलात खराब होते हैं। वो भी लोगों ने कहा था ये फितना बर्पा कर रहे हैं, मुश्किल पैदा कर रहे हैं, उन पर भी ये इल्जाम था। सब कुछ करो मगर मेहरबानी से यस्सु का नाम लेकर मनादी ना करना। और उन्होंने क्या कहा था? तो खुद ही सोच, क्या ये मुनासिब है कि हम खुदा की बात की निस्बत इंसान की बात माने? ऐसा नहीं हो सकता। आमूस को भी ये कहा गया कि तू इस इलाका के अंदर नबूवत ना करना। इतनी तुझे नबूवत आई है तो जाके यहूदा के इलाका में कर ले, अपने घर में रह और वहां पे नबूवतें करता रह, मगर बैतल में नबूवत ना करना। आगे क्या हुआ? लिखा है तब आमूस ने एमसिया को जवाब दिया, मैं ना नबी हूं ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गूलर का फल बटोरने वाला। इट्स अ टाइप ऑफ फिग, अंजीर की किस्म का एक फल है। जब मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावन ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इस्राएल से नबूवत कर। मैं क्या करूं? मैं तो नबी नहीं हूं, न मेरे खानदान में कोई नबी हुआ। मैं तो चुप करके अपना काम करता चला जा रहा था। भेड़ बकरियां जब वो पाल रहा था और जब वो अंजीरें तोड़ता था, उनको खिलाता पिलाता था। मैं तो अपने काम में मसरूफ था। मैं क्या करूं? मुझे खुदा ने चुना, मुझे खुदा ने पकड़ा, मुझे खुदा ने कहा, उसने मुझे ये रायतें दिखाई, उसने मुझे जजमेंट करने के लिए कहा, और उसी ने मुझे कहा कि जा और जाकर इस्राएल को पैगाम सुना। अब मैं खुदा की बात मानो या तेरी बात मानो। नो कॉम्प्रोमाइज। लाइफ के अंदर कोई समझौता नहीं।
لہذا اب آموس کیا کہتا ہے؟ چونکہ تو نے خدا کی بات کا یقین نہیں کیا، بس 16 ہے، اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی، تیرے بیٹے تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی، یعنی پوری میئرمنٹ کے ساتھ، پوری پیمائش کے ساتھ، اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر۔ تیرے اندر خدا کا روح کام نہیں کرتا، تیرے اندر خدا کا خوف کام نہیں کرتا، انسیا تو کیسا کاہن ہے؟ اگر تو خدا کا کاہن ہوتا تو تو خدا کی حضوری میں جھک جاتا، تو گریہ زاری کرتا، تو خدا سے رحم کو مانگتا، تو خدا سے اپنے لیے معافی کا طلبگار ہوتا۔ 2 عدالتیں تو میری شفاعت سے ختم ہو گئی، تیسری عدالت جو ہونے والی ہے، اور اس کا سبب بھی میں نے بتایا۔ تو فوراً اسرائیلیوں کو اکٹھا کرتا، ان کے بزرگوں کو اکٹھا کرتا، سرداروں کو اکٹھا کرتا، ان سے کہتا خدا کا یہ کلام ہے، خدا کی آواز سنو، اپنے بتوں کو گراؤ، اپنے مذہبوں کو گراؤ۔ اے یربام بادشاہ، تو بھی اپنے مذہبہ کو گرا، اپنے خدا کو قبول کر، اپنے خدا کے پاس آ، اپنے خدا کی حضوری میں جھک، توبہ کر، گریہ ازاری کرو، خاکسار ہو جاتے، تاکہ خدا تیسری عدالت سے بھی باز آ جاتا۔ جب وہ سہول سے تمہیں چیک کرتا تو تم ٹھیک اور درست اور سیدھی حالت میں نظر آئے۔ خدا اپنی تیسری عدالت سے باز آتا، مگر تو نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تو خدا کا کاہن ہے ہی نہیں، تو خدا کی طرف سے تو مخصوص ہی نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، میں اور آپ، ہم کلام کے اس حصہ سے اپنے لیے سیکھنے والے، ہم کلام کے اس حصہ سے اپنے لیے جاننے والے ہوں۔ شاید ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایسے مذہبیں بنا لیتے ہیں، شاید ہم ایسی باتیں اپنی زندگیوں کے اندر رکھ لیتے ہیں جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر رہی ہوتی۔ یہ وقت ہے جب ہم اپنی زندگیوں کے اندر اچھے فیصلے کرنے والے ہوں۔ یہ وقت ہے جب ہم خدا کی آواز کو سن کر ان مذہبوں کو ڈھا دینے والے ہوں۔ یہ وقت ہے جب ہم خدا کی حضوری میں خاکسار ہونے والے ہوں۔ یہ وقت ہے جب ہم خدا کی حضوری میں گریہ ازاری کرنے والے ہوں۔ یہ وقت ہے جب ہم خدا کے آگے جھکنے والے ہوں اور اپنی کمزوریوں کی، اپنی کوتاہیوں کی معافیاں مانگنے والے ہوں، تاکہ کہیں کوئی عدالت کے دن جو ہے وہ پھنس نہ جائے۔ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیاں دینے والے اور اس کے رحم کے محتاج ہوں۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانش مند اس کا لحاظ رکھتا۔ جو اس کی آواز کو سنتا، اس کے کلام کو سنتا اور اس کو اپنی زندگی میں لیتا، خدا کے لوگ خدا کی آواز کا لحاظ رکھتے، خدا کے لوگ خدا کی آواز کو قبول کرتے، خدا کے لوگ خدا کی آواز کو اپنے اندر لیتے، وہ پرکھ لیتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے آگ ہے مگر خدا اس میں نہیں ہے، زلزلہ ہے مگر خدا اس میں نہیں ہے، بنچال ہے مگر خدا اس میں نہیں ہے، طوفان ہے مگر خدا اس میں نہیں ہے۔ پھر ایک ہلکی سی دبی ہوئی آواز ہے اور انہیں سمجھ خدا اس میں ہے، اور اس کی آواز کا لحاظ رکھتے۔ پروو کیجئے اپنے آپ کو، ثابت کیجئے اپنے آپ کو، ہم خدا کے مخصوص کیے، ہم خدا کے چنیدہ ہیں، ہم خدا کے سلیکٹڈ ہیں، ہم برگزیدہ ہیں، ہم علیحدہ کیے ہوئے، ہم مخصوص کیے، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم خدا کے ہیں۔ ہمیں بشر نے کھڑا نہیں کیا، ہمیں خدا نے کھڑا کیا۔ اپنے چناؤ، اپنی مخصوصیت، اپنے الگ کیے جانے، اپنے برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کیجیے۔ کس قدر ضروری، اور
एमसिया की मानित नहीं बल्कि आमूस की मानित कलाम को कबूल करने वाले बन जाए। वो कहता मैं तो कुछ भी नहीं था भैया, मैं तो चुप करके अपना काम कर रहा था। सुबह उठता था, भेड़े लेके जाता, रात उन्हें मैदान में रखता था, पालता चराता था, और जो है वो सारा दिन मैं तो अपने काम में मसरूफ था। मुझे क्या पता, मुझे तो खुदा ने पकड़ा और खुदा ने कहा ये कर। मैं और आप, हम अपनी दुनियादारी के अंदर मसरूफ थे। यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें पकड़ा, उसने हमें धोया, पाक और साफ किया और अपने लायक ठहराया। और जरूरी है कि हम इसको साबित करने वाले हो, हम यीशु मसीह में पाक किए गए, हम यीशु मसीह में चुने हुए, हम यीशु मसीह में अलग किए गए हैं, क्योंकि ये कलीसिया की सिफ्त है। निकालिए जरा पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, पहला कुरिन्थियों पहला बाब पहली आयत से लिखा है, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थेनियस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में, यानी उनके नाम, कलीसिया की सफात बयान होने लगी, यानी उनके नाम पहली बार जो मसीह यीशु में पाक किए गए। ये कलीसिया की पहली सिर्फ, बगैर पाकीज़गी के कोई खुदा की जमात का हिस्सा नहीं बन सकता। पाकीज़गी पहली शर्त है। सोचों की पाकीज़गी, आंखों की पाकीज़गी, गुफ्तगू की पाकीज़गी, राहों की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी, ख्यालों की पाकीज़गी। पाकीज़गी पहली शर्त है कलीसिया के, खुदा के चुने हुओं के लिए पाकीज़गी पहली शर्त है। वो जो मसीह यीशु में पाक किए गए, और दूसरी वो मुकद्दस होने के लिए बुला। क्या कोई नापाक मुकद्दस हो सकता है? कोई नापाक मुकद्दस नहीं हो सकता। उसकी तकदीस नहीं होगी। तकदीस हमेशा किसकी होगी? जो पाक है। कभी नापाक की तकदीस का मतलब कि जिसको खुदा मुकद्दस ठहराए, मखसूस कर दे, अपने लिए ठहरा ले, जिसकी तकदीस हो जाए, ये खुदा के लिए है, और कोई नापाक चीज खुदा के लिए नहीं हो सकती। खुदा के लिए जो भी ठहराया जाएगा, मखसूस किया जाएगा, जिसकी भी तकदीस की जाएगी, वो पाक होगी। सो कलीसिया की पहली शर्त क्या है? वो पाक हो, और दूसरी शर्त वो खुदा के लिए मखसूस की गई है। और तीसरी शर्त क्या है? लिखा है उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। इसलिए तो ये इक्लीसिया है, खुदा की जमात, खुदा के लोग, क्योंकि पाकीज़गी है, खुदा के लिए चुने गए हैं, और फिर हर जगह खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। अपनी मुश्किल में, अपनी आसानियों में, अपने दुखों में, अपनी खुशियों में एक ही नाम इनको आता है, और वो यीशु मसीह का नाम। एमसिया तू कहता है जा यहूदा में, और वहीं पे नबूवत का, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तुम कहते हो यीशु का नाम लेकर मनादी ना करना, ये कैसे हो सकता है? हम कलीसिया हैं, हम हर वक्त और हर जगह अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए, और हमारी रहनुमाई करता है। वो हमारी रहनुमाई जो वो करता है। जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए किस कदर जरूरी है हम खुदा के कलाम से अपनी राहों को रोशन करने वाले, हम खुदा के कलाम से
اپنے راستوں کو ہموار کرنے والے، ہم خدا کے کلام سے سیکھنے والے ہوں، اور جو بھی ہماری زندگیوں کے اندر خدا کے علاوہ مذہبیں بنے ہیں ان کو گرا دینے والے ہوں اور خدا سے رحم کو مانگنے والے ہوں۔ آئے خدا کی حضوری میں کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا شروع کریں اور خدا سے اس کے فضل کو اور اس کے رحم کو مانگنا شروع کریں۔ موقع ہے ان لمحات میں اپنے اندر جھانکیے۔ خدا کلیسیا میں پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ آؤ اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور جہاں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے مذہبیں ہیں جو خدا سے جدا کرتے ہیں، ان سے نکلنا شروع کریں، ایسے مذہبوں کو گرانا شروع کریں، ایسے مذہبوں کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کیجئے، اور آؤ خدا کی حضوری کے اندر ایسے چلیں جب وہ ہماری پیمائش کرے، جب وہ ہمیں چیک کرے تو ہم اس کی حضوری میں درست حالت میں اور سیدھی حالت میں نکلنے والے ہیں، بے ترتیبی کی حالت میں نہیں بلکہ درست حالت، پاکیزگی کو اپنی زندگی میں لینے والے ہیں، سلامتی کو اپنی زندگی میں لینے والے ہیں۔ ہم جان لیں ہماری تقدیس ہو گئی، ہم پاک ٹھہرا دیے گئے، ہم مقدس ٹھہرا دیے گئے، ہم مخصوص ٹھہرا دیے گئے، ہم یسوع کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ آئیے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے غور و فکر کرنا شروع کریں۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند تیرا شکر، خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ یسوع مسیح ہم تیرا شکر کرتے ہیں جس نے ہمارے لیے باپ کے آگے شفاعت کی۔